if we have to increase the rate of dialysis, in such case we use metal electrodes inside this solution, like shown in figure 5.10. In figure 5.0 you can see metal electrodes are used. They are connected to a battery. So because these electrical impurities are charge impurities, so these charge impurities will move with faster rate towards these oppositely charged electrodes, and thus the rate of dialysis can be increased. And in such case, this process is called electrodialysis. Electrodialysis is nothing if we carried out dialysis in presence of electric current, under the influence of electric current, then the process is called electrodialysis. In electrodialysis, small electrical impurities which are charged move faster towards the oppositely charged electrode, and now the process is called electrodialysis, right? Now next technique we go, technique we go, that is called ultrafiltration. The normal filter paper which you use in laboratory have large pore size, and this filter paper cannot be used to remove the impurities from the colloidal salt, because colloidal particles can also filter from these pores. So what we used to do, we soak this normal filter paper in a special type of solution called collidone. Collidone is a solution of 4% nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. What we do, we soak the normal filter paper in a solution called collidone, which is a mixture of 4% solution of nitrocellulose in alcohol and ether. What will happen? This nitrocellulose will deposit on the pores of filter paper, and it will reduce the pore size of filter paper. But by doing so, the normal filter paper get wet, and to make it dry and hard, it is further treated with formaldehyde. Formaldehyde make this wet filter paper hard, and after drying it, we can use such filter paper for the removal of water soluble and other electrolytic impurities from the colloidal salt. And now this filter paper is called ultra filter paper or ultra graded filter paper, and this technique is called ultrafiltration. Though ultrafiltration is a very slow process, but this process can be speed up by using suction pump. What we used to do, like if we are using this funnel and we have applied here ultrafilter paper and colloidal salt, we pour over it. So we connect this stem of funnel to a suction pump or vacuum pump, so that the process of ultrafiltration can be increased. Small electrolytic impurities will filter out, and the large colloidal particle will remain on the filter paper, and afterward we mix these colloidal particle to a suitable solvent or dispersion medium to form a colloidal salt or pure colloidal salt again. So this is the method used for the purification of colloidal salt. Now we go for the properties of colloidal solutions. First we go for colligative properties. Colligative properties, you have heard about elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, relative lowering in vapor pressure. These all are colligative properties, and in all colligative properties you will find that every colligative property, either it is elevation in boiling point, or it is depression in freezing point, or it is osmotic pressure, all are inversely proportional to the molar mass of the substance. So these colloidal particles, these colloidal salts have higher molar masses than the true solutions. True solution में जो solutes हैं उनके comparatively
the molar masses of colloidal salt are higher, or due to the higher value of molar masses and bigger size of colloidal particles, the colligative properties obtained in case of colloidal salt are very very negligible. Like elevation in boiling point will come 0.00000012. So it is almost negligible. So in case of colloidal solution, colligative properties have no real significance, and that's why we do not study colligative property in case of colloidal salt. Colloidal particles being bigger aggregates, the number of particles in colloidal solution is comparatively small as comparative to true solution. Hence, the values of colligative properties like osmotic pressure, lowering in vapor pressure, depression in freezing point, and elevation in boiling point are of very small order as compared to values shown by true solution at same concentration. So we can say in case of colloidal solutions, colligative properties have no real significance. हम इसको नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे क्योंकि इतनी कम वैल्यूज आती है कि पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आपका. Now next we go for the next property, that is called Tyndall effect. This you have studied in class 9th also. Tyndall effect is simply the scattering of light. Scattering of light by colloidal particle is called Tyndall effect. Colloidal particles are bigger in size than the true solution. So whenever a light strikes on these colloidal particles scatter the light in different directions, and this is called Tyndall effect. The common examples of Tyndall effect you have seen in cinema halls, जो आपने बहुत दिन से नहीं गए हो आप लोग. When a light falls from the projector on the screen, you can easily see the dust particles moving in the air. You might have observed, if you are sitting in a dark room and from a narrow hole a light beam enters, sunlight beam enters, then you will observe the movement of dust particles in that path. But to observe Tyndall effect, you have to be perpendicular to the light source. For example, if we have a colloidal solution and we are using a light source, then we have to be perpendicular at 90 degree to observe the Tyndall effect. If we will be in the same, अगर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे here in the light source, will not be able to observe the Tyndall effect. आप देखते हैं जो सिनेमा हॉल होता है उसमें जो प्रोजेक्टर से लाइट जा रही होती है तो उसके आप परपेंडिकुलर ही होते हैं और तभी आप उसमें 10 पार्टिकल देख पाते हैं. अगर आप उस प्रोजेक्टर की लाइट जहाँ से फॉल हो रही है उसी की डायरेक्शन में आगे खड़े हो जाओ, आपको 10 पार्टिकल का मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा. सो टू ऑब्जर्व Tyndall effect, you have to be perpendicular to the light source. And when these colloidal particles scatter the light, you can see the illuminated path. तो पाथ आपको illuminated दिखाई पड़ेगा. और इसमें ये बात भी आपको सीखनी होगी. This is a convex lens. It is used to fall light on this in this colloidal solution, and this cone is called Tyndall cone, or this path of the light gets illuminated. या आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा. You can easily observe the movement of colloidal particle with the help of microscope. You cannot see with the naked eye. तो ऐसा आप एक वर्किंग मॉडल भी बना सकते हैं. What you do? You take a box of shoes. जिस बॉक्स में आपको शूज मिलते हैं शॉप से, वो बॉक्स ले लिया आपने. यहाँ पे कट करके आपने यहाँ पे एक पॉलिथीन लगा दी, ट्रांसपेरेंट बना दिया. Here you use a torch. और यहाँ पे आपने एक बीकर में कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन स्टार्च को रख दिया, मिल्क रख दिया, और जब आप लाइट फॉल करेंगे यहाँ से और एग्जामिनर को बोलेंगे सर आप यहाँ से देखिए, एग्जामिनर को आप बोलेंगे सर यहाँ से आप देखिए, तो एग्जामिनर जब यहाँ से देखेगा उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा. बोले क्या लाए यार, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है. तो आप बताएंगे सर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो लाइट सोर्स हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर उसकी वेवलेंथ और जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज है वो सेम ऑर्डर का नहीं है. कहने का मतलब ये है, अगर आपको टिंडल इफेक्ट स्टडी करना है तो ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल should not be much larger
देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, या बहुत सीधे सीधे बात करें, जो डायमीटर है डिस्पर्स फेस पार्टिकल का वो, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इसमें यूज हो रही है वो लगभग लगभग सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। और सेकंड बात, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस, ये प्लूरल है इंडेक्स का, refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए, पीवीआर में बैठे हुए, सडनली अगर एग्जिट वाला गेट ओपन हो जाता है तो आपको डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट देखना बंद हो जाता है, और जब गेट बंद हो जाएगा, डार्कनेस होगी, तब लाइट भी प्रोजेक्टर पे जा रही होगी, तब आपको फिर से डस्ट पार्टिकल्स विजिबल हो जाएंगे। जब गेट बंद हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस, यानी कि एयर और डस्ट पार्टिकल्स के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। लेकिन जब गेट खुल गया तो एयर और डस्ट पार्टिकल यानी डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया। यानी कि अगर आपको ऑब्जर्व करना है टिंडल इफेक्ट, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। The refractive indices of dispersed phase and dispersion medium must differ greatly in magnitude। अगर ये एक से रहेंगे तो भी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो एग्जामिनर को आप समझाएंगे भाई सर यहाँ पे देखिए, अगर टिंडल इफेक्ट या कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है जो हमने सेटअप किया है, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं सर, कि द डायमीटर ऑफ लाइट विच वी यूज, the wavelength of light which we use is not of same order as of the diameter of dispersed phase particle, or sir it may also be possible that the refractive indices of dispersed phase and dispersion medium are not of great difference। तो आप ये वर्किंग मॉडल जो नॉट वर्किंग रहेगा उसके दो रीजन आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं। ठीक, तो टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए ये आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी और परपेंडिकुलर तो लाइट सोर्स के रहना ही होगा। जो सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर सकते हैं क्योंकि उनका साइज कोलाइडल पार्टिकल्स से बड़ा होता है, लेकिन टू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते बिकॉज दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल। लाइट जब उन पे पड़ेगी, क्योंकि लाइट पार्टिकल नीचे भी रखती है, तो वो उस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देगी बजाय कि उसको टकरा करके स्कैटर होने की। तो टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलाइडल एंड अ ट्रू सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश between a true solution and colloidal particle, distinguish between a colloidal and a true solution not based on the size। और ये भी दे दे कि भाई साइज के बेस पर नहीं, ऐसे ही बताना है। तो क्या करोगे, टिंडल इफेक्ट करके देखो, अगर टिंडल इफेक्ट हो रहा होगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, और नहीं हो रहा होगा तो ट्रू सॉल्यूशन होगा। जिगमंडी ने इसे बताया था। टू सेट अप एन apparatus known as अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये सारी बातें आपसे डिस्कस हो चुकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर की। ये कलर एक ऐसा टॉपिक है जिससे जब भी क्वेश्चन दिया बच्चे आंसर नहीं करते। कलर एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो अच्छे टॉपिक्स हैं उनके बीच में दब जाता है, और जब कलर से क्वेश्चन आता है तो बच्चे उसे आंसर नहीं कर पाते, ऐसा मैंने देखा है। और नीट में, जेई में, आईआईटी में इन्हीं तरह के टॉपिक से जो बच्चों को कम इंटरेस्ट के लगते हैं या टीचर जिन्हें हल्के तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चे हल्के तरीके से ले लेते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन डाटा आता है, क्योंकि वो भी सिलेबस का पार्ट है। जो पेपर सेटर है उसे पता है कि बच्चे ने क्या चीज़ छोड़ी होगी, उसे मालूम है कि टीचर्स का ट्रेंड क्या रहता है, इसलिए एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना चाहिए। तो कलर जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो आपको पहले पता होना चाहिए। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर है, इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड एंड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। तो जो कलर की लाइट स्कैटर करेगा पार्टिकल, वही कलर हमें विजिबल होगा। जैसे हम कह रहे हैं स्काई इज ब्लू इन कलर, तो स्काई ब्लू कलर का इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जो स्काई में डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, दे रिफ्लेक्ट और दे स्कैटर ब्लू कलर ऑफ लाइट। इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं। केमिस्ट्री में कोई कितना भी ज्ञान बांटता रहे, हमारे लिए स्काई अगर ब्लू है तो सिर्फ इसलिए है
क्योंकि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो आपके क्या कहना चाहिए जो वाटर वेपर्स हैं या दूसरे पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर की लाइट को ही एमिट करते हैं, स्कैटर करते हैं। इसीलिए जो स्काई है वो हमारे लिए ब्लू कलर का है, इसमें कोई दूसरा रीजन नहीं हो सकता केमिस्ट्री के हिसाब से। अब फ्रीज कलर क्या कहते हैं वो पता नहीं मुझे। नेक्स्ट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको स्कैटर कर रहे हैं, the wavelength of light further depends on the size and nature of the particle. The color of colloidal solution also changes with the manner in which the observer receives the light. चार बातें आ गई कि किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन का जो कलर है वो एक तो उस वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, उस लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा जो लाइट स्कैटर कर रही है। ये बात सब बच्चों की समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो जो स्कैटर करेगा वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है और उनके नेचर पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि डिस्पर्स फेज के साइज और डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल का नेचर है उस पर भी कलर डिपेंड करेगा। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको स्कैटर कर रहा है उस पे, और size of dispersed particle or nature of dispersed particle. The color of colloidal solution also changes with the manner in which the observer receives the light. इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर जो लाइट रिसीव कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल दें आपको, अगर हमारे पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर है तो वो ब्लू दिखाई पड़ता है जब उसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हैं। A mixture of milk and water appears blue when viewed by the reflected light, और रेड दिखाई पड़ेगा जब when viewed by the transmitted light, जिस लाइट को वो एमिट कर रहा है। तो ये बातें आपको सीखनी है कि जो कोलाइडल सॉल्व का सोल्यूशन है वो नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल, द वे द व्यूअर एब्जॉर्ब द रेडिएशंस और सी द कोलाइडल सोल्यूशन उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे अभी आपको बताया मिल्क और वाटर का मिक्सचर ब्लू दिखाई पड़ेगा जब इसे आप रिफ्लेक्टेड लाइट से देखेंगे, जब वो जो पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को उसे देखेंगे तो वो ब्लू दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब आप उसे ट्रांसमिटेड लाइट से देखेंगे देन द कलर विल अपीयर एज रेड। सो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। क्वेश्चन आ जाता है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू, या अ मिक्सचर ऑफ milk and water, what will be the color of mixture, what will be the color of a mixture of milk and water which is observed by a reflected light, तो कैसा रहेगा ब्लू, और which is observed by transmitted light या viewed by transmitted light तो क्या रहेगा रेड रहेगा। इसी तरह से ये गोल्ड का देखिए एग्जांपल, जैसा हम कह रहे थे कि साइज ऑफ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे भी कलर शो करता है। अगर आप फाइनेस्ट गोल्ड सॉल देखेंगे जिसमें गोल्ड पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो वो रेड कलर का आपको दिखाई पड़ेगा। फाइनेस्ट गोल्ड सॉल इज रेड इन कलर। एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस उसका कलर रेड से पर्पल हो जाएगा, देन ब्लू हो जाएगा एंड देन फाइनली गोल्डन। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं जब इस तरह का डाटा नहीं पढ़ा होता तो वो सिर्फ तुक्का ही मारते हैं। और आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कभी भी आपकी जो गैस है वो गैसेस सही नहीं होते आपके, जब तक डाटा एग्जैक्टली हमें पता नहीं हो तब तक हम उसे आंसर करने की पोजीशन में नहीं आ पाते हैं। तो ये बात सब बच्चे ध्यान रखेंगे। फाइनेस्ट गोल्ड सॉल इज रेड इन कलर। जनरली ये क्वेश्चन अगर आ जाए द कलर ऑफ फाइनेस्ट गोल्ड इज, तो 99% बच्चा फाइनली गोल्डन लगा के आएगा, क्योंकि उन्हें गोल्डन तो गोल्डन देखा है उसने, तो उसे क्या मालूम कि जब गोल्ड पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो वो रेड कलर की वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा, और साइज जैसे बढ़ेगा वो पर्पल रहेगा। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन साइजेस ऑफ कलर ऑफ गोल्ड सॉल, तो उसमें दे दिया रेड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ गोल्ड सॉल उसमें सबसे पहले रेड दे दिया, फिर आपको गोल्डन दे दिया, फिर पर्पल दे दिया, फिर ब्लू दे दिया। तो कैसे चलोगे आप, रेड देन पर्पल देन ब्लू एंड देन गोल्ड, और कोई भी कलर दे सकते हैं।
तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। आपने देखा होगा कभी भी ठंडे दूध में मलाई नहीं आती, कभी जो कच्चा दूध होता है सॉरी, उसमें आपको कभी मलाई दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो फैटी एसिड्स हैं वो लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसी तरह से मड, जिसे कीचड़ आप बोलते हो, जब नालों की सफाई होती है तो आप देखते हो कीचड़ निकाल के म्युनिसिपैलिटी वाले सड़क पर डाल देते हैं। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि उस कीचड़ में पानी ऊपर तैर रहा हो और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे बैठे हैं, कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मड जो है, जो मिल्क है, ये कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल सॉल है, और इनमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो लगातार एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते रहते हैं जिगजैग मैनर में, और इसीलिए कभी भी ये बॉटम पे सेटल नहीं होते। 2019 या 20 में क्वेश्चन आया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? ब्राउनियन मूवमेंट। The Brownian movement has a steering effect which does not permit the particles to settle, and thus it is responsible for the stability of solid. बच्चे क्या करते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया, ये लाइन नहीं पढ़ी हुई है, इससे ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा हुआ है, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल सॉल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। बात नहीं बनेगी, क्योंकि उस केस में बच्चे क्या करते हैं? चार्ज को बता देते हैं, चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। और कुछ और ज्यादा समझदार है तो वो क्या करता है? हाइड्रेटेड लेयर ऑन द डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। वो जो चार्ज, वो जो हाइड्रेटेड लेयर की हम बात करते हैं, वो करते हैं स्टेबिलिटी टुवर्ड्स प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन। यहाँ एक जनरल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए अलाउ नहीं करता। एक बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने पॉलन ग्रेन में देखा था कि पॉलन ग्रेन जो है कभी सेटल नहीं होते, लगातार एयर में इधर उधर मूव करते रहते हैं, और इसीलिए दिस मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट भी देखा था। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरह से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो बॉटम पे कभी भी सेटल नहीं होते, लगातार मोशन में रहते हैं, उसी तरह से जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, दे अंडरगो जिगजैग मोशन। अच्छा, ये ब्राउनियन मूवमेंट होता क्यों है, उसकी भी बात आप समझ लीजिए। ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो इस वजह से होता है। द ब्राउनियन मूवमेंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू बी due to the unbalanced bombardment of the particles of the molecules of the dispersion medium। आपको मालूम है डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल का साइज अलग है, वो 10⁻⁻⁹ ऑर्डर का रहेगा। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर का रहेगा, दोनों के साइजेस अलग अलग हैं। तो अगर ये आपस में बम्बार्ड करेंगे, टकराएंगे, तो इक्वल फोर्स तो नहीं आएगा, क्या होगा? कहीं ना कहीं डेविएट हो जाएगा पाथ से और वो जिगजैग मैनर में आ जाएगा। तो द ब्राउनियन मूवमेंट का अगर रीजन आपसे पूछते हैं तो ये आप बताएंगे, दिस इज ड्यू टू द अनबैलेंस्ड bombardment of the particles by the molecules of dispersion medium। dispersion medium के जो particles हैं उनसे अनबैलेंस्ड, अनइक्वल बम्बार्डमेंट फील करते हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, और इसीलिए लगातार जिगजैग मैनर में वो मूवमेंट रहता है, और इसी को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। मैंने देखा है नीट में, जेई में इस टेबल से काफी क्वेश्चन आते हैं, और वही बच्चा आंसर कर पाता है जिसने इस टेबल को सुना हो, देखा हो और उसे डाटा याद भी हो। केवल इसको देखने से बात नहीं बनने वाली, ठीक है? और जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो मैंने देखा है पर्सनली कि ये सब चीजें छोड़ देते हैं, ये मान के चलते हैं बच्चे को अपने आप ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए कुछ नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिवली चार्ज सॉल्व। तो इनमें से कोई एग्जांपल दिए तो वो होगा। अब बच्चों को बैठ के वहां पे सपने नहीं आएंगे ये नेगेटिव चार्ज होगा, डाटा याद होगा तभी आंसर कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव चार्ज सॉल्व, वो आ जाएगा। या उल्टा दे दिया, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व, तो अगर आपको 3 नेगेटिव याद है तो पता चल जाएगा वाला पॉजिटिव वाला वही होगा। तो इस तरह से कुछ सॉल्व दे रखे हैं हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्व हैं।
मैंने जिस दिन आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था लायोफिलिक और लायोफोबिक, तो उसमें 15-20 मिनट इसी बात के दिए थे कि कोलाइडल पार्टिकल पे किसी ना किसी तरह का चार्ज होगा जरूर। और दो तरह के हमने यहाँ डिस्कस किया था उस दिन पार्टिकल्स को, एक थे लायोफिलिक सॉल्ट्स और दूसरे थे लायोफोबिक सॉल्ट। दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स के बने होते हैं, दोनों पे ही चार्ज रहता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक, किसी पे भी कोई भी चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं दे आर हाइड्रेटेड आल्सो, यानी कि उन पे चार्ज तो होगा ही होगा किसी भी तरह का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, साथ ही साथ उन पे हाइड्रेटेड लेयर भी रहती है वाटर मॉलिक्यूल की, जबकि लायोफोबिक में ये हाइड्रेटेड लेयर नहीं होती। तो अभी तो आपको सिर्फ ये समझना है कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उन पे चार्ज जरूर होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो ये हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बेसिक डाई स्टफ्स होते हैं जैसे मिथाइलिन ब्लू है, सॉल है, इन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड है जिसमें एल्बुमिन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। आप देखते हैं ना कभी ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, कट लग जाता है, तो आप उसको कोशिश करते हैं एलम लगा दें, या अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन पीले कलर का जो देखा आपने, जो आपकी वुंड पे लगने के बाद जो है वो डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है ना, तो वो FeCl3 जो है क्या करता है, यहाँ पे चार्ज कैसा है, हीमोग्लोबिन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये Cl नेगेटिव आयन जो है वो उसको कोएगुलेट कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन पॉजिटिव चार्ज है। अब उसी बच्चे को याद रहेगा जिस बच्चे ने ये बात पढ़ी होगी, जिसके साथ डिस्कशन हुआ होगा, और डाटा को याद रखिएगा। इसी तरह से जो ऑक्साइड्स है, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। मेटल के सॉल्ट जनरली नेगेटिव होते हैं, मेटेलिक सल्फाइड जनरली नेगेटिव ही होते हैं। एसिड डाइज जो होती हैं, आप ऐसे याद रखें COO नेगेटिव, तो वो नेगेटिव चार्ज सॉल्व होते हैं। बेसिक डाई जैसे NH4 पॉजिटिव, ऐसा मान के चलें, याद रख सकते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। एसिड में नेगेटिव चार्ज है जैसे इओसिन है, कॉन्गो रेड है, ये सब। सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, गम्स, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इन्हें आपको याद रखना होगा, डाटा आपको सीखना होगा। अब हम बात करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आता कैसे है। अभी तक मैंने आपको ये तो बता दिया कि चार्ज होता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन चार्ज कैसे आता है वो हम कैसे सीखेंगे। उसके लिए एक प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, ये नेचुरल सी बात है, नेचर में शुरू से ही है ये चीज कि जो सेम टेंडेंसी के लोग हैं उनकी दोस्ती होती है, जो अपोजिट टेंडेंसी के होते हैं इनके व्यूज नहीं मिलते, वो एक दूसरे से कम मिलते जुलते हैं। तो ऐसा यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशंस में भी देखा गया है। उसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ क्या मतलब है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन का, वो एक एग्जांपल में ले रहा हूँ। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे, तो पहले आपको इस इक्वेशन के थ्रू AgNO3 प्लस Ki सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा और KNO3 अलग हो जाएगा। नाउ दिस प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल जो है AgI के जो प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी सरफेस पर वो आयन एडजॉर्ब करेंगे जो सॉल्यूशन में कॉमन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो Ki का सॉल्यूशन है उसमें K पॉजिटिव और I नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। तो AgI का जो मॉलिक्यूल है, ये सभी AgI के मॉलिक्यूल जो अभी एग्रीगेटेड है प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, I नेगेटिव को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेंगे
और जब चार्ज आ जाएगा सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कोलाइडल रेंज वाले पार्टिकल साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे और सभी की सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा आई नेगेटिव की वजह से। तो ये कहलाता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। ये आपका सॉल्व तैयार हो गया, यानी कि वो आयन का एड्सॉर्प्शन प्रेफर किया जाएगा जो सॉल्यूशन में कॉमन है। यहाँ प्रेसिपिटेट किसका मिला आपको, AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो AgI का कौन सा आयन सॉल्यूशन में कॉमन है, KI की वजह से आई नेगेटिव। तो इसलिए AgI के जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में थे वो सभी अपनी सरफेस पर आई नेगेटिव चार्ज को एड्सॉर्ब करेंगे और नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट जो है सिल्वर आयोडाइड का आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसका उल्टा कर लें, आप इसका उल्टा कर लें। इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने KI के एक्वस सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। इस बार भी रिएक्शन वही होगी, इस बार भी आपको प्रेसिपिटेट AgI का ही मिलेगा, लेकिन इस बार AgI के मॉलिक्यूल्स पर वो आयन एड्सॉर्ब होगा जो सॉल्यूशन में कॉमन है। वो कौन सा है, AgI का कौन सा आयन कॉमन है सॉल्यूशन में, Ag पॉजिटिव। AgI का कौन सा आयन सॉल्यूशन में कॉमन है, Ag पॉजिटिव। तो इस बार आपको सॉल्व कैसा मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा। अगर आपने AgNO3 के सॉल्यूशन को KI के सॉल्यूशन में डिप किया तो आपको AgI का नेगेटिवली चार्ज सॉल्व मिलेगा। अगर आपने KI के एक्वस सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड किया तो भी AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन इस बार AgI के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी सरफेस पर ये पॉजिटिवली चार्ज आयन एड्सॉर्ब करेंगे जो कि सॉल्यूशन में कैसा है, कॉमन है। तो ये कहलाता है आपका प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। दैट मींस the colloidal particles will absorb that particular charge which is common in the solution। ये नेचर का लॉ है और ऐसी टेंडेंसी ये सॉल्व भी करते हैं। और आप एक बात और यहाँ सीखने वाले हैं कि जो ये नेगेटिव चार्ज NO3 नेगेटिव वाला चार्ज है, ये NO3 नेगेटिव चार्ज भी जो है इस Ag पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस की वजह से इसके बाहर वाली लेयर में ही रहेगा। तो ये जो AgI की लेयर है इट इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर ऑफ चार्ज और जो NO3 वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ चार्ज। और आप देखते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं और इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से इस दोनों लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा विच इज कॉल्ड जीटा और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ये जो डिफ्यूज और फिक्स लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। टाइम इज अबाउट टू ओवर, रेस्ट थिंग वी विल डिस्कस टुमारो, राइट। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और हर लाइन की इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए आपके, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हो सकता है बोर्ड में आपके 90 नंबर आ जाएं, लेकिन जब तक NCERT नहीं पढ़ेंगे कहीं भी